جوپیٹر ابھی رہے گا. تو بہرحال یہ ٹائم کریٹیکل ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے جو انڈیا ہے وہ اسٹریٹجی بدل دے گا اپنی 11 کو، اور وہ اب جو نہیں حملہ کرنے کی اس میں ہوگا 11 کے بعد وہ بھی کر سکے. میڈیا مزید تباہ کن خبریں دے گا مسالے کے ساتھ، کیونکہ مرکری بیٹھا بھی اس ٹائم مارس کے ساتھ ہے. مرکری مارس. باقی یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اٹیک کی طرف جو کوئی تو کوئی کہانی بن سکتی ہے ان کی بھی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. 11 نومبر 2025 بروز منگل کا ناظرین آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں سب کو یہ پتا ہوگا وہ خبر کا، جس کا میں آپ کو کیا بتاؤں. سامہ صاحب نے پریڈکشن دی تھی کہ 11 نومبر جو ہے وہ کریٹیکل ہو سکتی ہے اس کے بعد، کیونکہ جوپیٹر ریکٹوگریڈ انہوں نے بولا تھا کہ ہوگا، اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ اس طرف آ سکتی ہیں. ابھی 10 نومبر ختم ہو رہی تھی تو انڈیا سے ایک خبر آتی ہے جو افسوسناک واقعہ ہوا. ہم پاکستانی ہوں، کہیں پہ بھی ہو، انسانیت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، مذمت کرتے ہیں. افسوسناک واقعہ ہوا، نیو دلی میں بلاسٹ ہوا، اور اتنا زیادہ ان کا نقصان ہوا کہ انڈیا میں بنا سوچے سمجھے ابھی بلاسٹ ہوا. لیکن وہاں کے جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے بولا کہ وہاں پہ سلنڈر تھے، جس کی وجہ سے حتمی رپورٹ انہوں نے دی کہ سلنڈر پھٹا ہے، یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی جو انڈین میڈیا تھا اس نے فالس خبریں دینی ہوتی ہیں، اور پاکستان پہ الزامات وہاں پہ لگنے لگ گئے، کیونکہ بہار میں الیکشن آنے والے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات انڈیا میں نیو دلی میں ہوا. اور آپ کو بتائیں کہ 8 سے 10 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور آپریشن سندور 2.0 اور ان کے انڈیا کا سوشل میڈیا الزام لگائی جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ میٹرو گیٹ 1 تھا، اس کے اوپر گاڑیاں کھڑی تھیں، سلنڈر تھا تو وہ بلاسٹ ہوا. انڈیا میں دھماکوں کے حوالے سے سامہ صاحب نے کہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں فالس آپریشن اور یہ کرے گا. اچھا، پاکستان آرمی اس ٹائم ہائی الرٹ پر ہے، اس کی خبر میں آگے چل کے آپ کو دیتا ہوں وہ کس طرح ہے. اچھا، صبح بھی انہوں نے ہریانہ سے 360 مواد جو ہے وہ ان کو کل ملا تھا، اور وہ بھی پاکستان پر انہوں نے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن انہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا. مطلب انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہم پہ الزام لگاتے ہیں. ابھی کوئی خوشی کی خبر بھی انڈیا میں آئے تو وہ بھی پاکستان پہ الزام لگا دینا چاہیے ان کو. ہر نیگیٹو چیز جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے کی ہے. اچھا، آپ کو بتائیں کہ ان کے ایک تو 2 فوجی بھی اریسٹ کیے تھے انہوں نے، وہ بھی فالس سٹیٹمنٹ ہم پہ لگا دی. پھر وہ ملا جو تھا وہ پاکستان انویسٹیگیشن کر کے کیا زبردست پاکستان نے پکڑا وہ ملا کو، اور اس نے بعد میں مانا کہ جی میں وہاں چلا گیا تھا، میں نے خبر دی تھی آپ کو ملا کے حوالے سے کہ وہ جو شپ مین تھا وہ گیا ادھر، اس کو کہہ رہے جی وردیاں دو. تو یہ دیکھیں کس طرح کی ان کی سوچ اور عجیب و غریب حرکتیں ہیں. اچھا جی، انڈیا کی جو رپورٹ آ رہی ہے کہ ایک رپورٹ میں میڈیا کہہ رہا ہے کہ 2 دھماکے ہوئے، اور ایک جگہ کچھ میڈیا والے کہہ رہے ہیں 1 دھماکہ ہوا. مطلب آپس میں میڈیا کی خبریں بھی انڈیا کی نہیں ملتی. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ انڈین پولیس نے اب بتا دیا ہے کہ یہ سلنڈر کا ہے، اور یہ 3-4 چینلز ہیں جو بار بار بتا رہے ہیں کہ پولیس کہہ رہی ہے سلنڈر ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان نے کرایا. اب ان کا آپس میں میڈیا دیکھیں کیا حرکتیں کر رہا ہے. اچھا، آپ کو بتائیں کہ وانا میں کیڈٹ سکول پر APS 2 ہونے لگا تھا جو لاسٹ ٹائم 2014 میں ہوا تھا، اور وہاں پہ پاکستان آرمی ہائی الرٹ پر تھی، اور دہشت گرد وہاں پر گھسے اور ساتھ ان کو گھیرا ڈال کے ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا. اور یہ اس طرح کا APS والا واقعہ کرنے لگے تھے کل جو اور بعد میں انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ لگا ان کے جو فون ہیں وہ افغانستان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، اور ان کے آقا کون ہے؟ انڈیا. تو یہ ڈائریکٹ ایک چین بن رہی تھی جو دہشت گردوں کو پاک آرمی نے مارا، کیونکہ پاکستان آرمی اس ٹائم فل الرٹ پر ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. اچھا، آپ کو دوسرا بتائیں کہ انڈیا کے جو مختلف پیجز ہیں، جو ٹویٹر ہینڈلر ہیں، جو را بھی چلا رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے 48 گھنٹے جی بڑے کریٹیکل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے جی جنگ چھڑ سکتی ہے. یہ اس طرح کی فالس سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں. لیکن اسامہ صاحب سے آج ہم پریڈکشن لیں گے. آج کا امپورٹنٹ پروگرام ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آگے آپ کو اسامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے. اور آپ کو بتائیں کہ ایران کے حوالے سے بھی ناظرین خبر آ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیو یارک ٹائمز، یہ بتا رہا ہے کہ ایران کبھی بھی جنگ میں جا سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل اس ٹائم پہ فل اپنی وہ بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے، ایکسرسائزز کر رہا ہے، اور کبھی فلسطین پہ اٹیک کبھی بھی اس نے نہیں روکا، لبنان پہ بھی نہیں روکا. اب ایران کے اوپر اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ جی ایران کے اوپر کبھی بھی لڑائی کسی بھی لمحے چھڑ سکتی ہے. یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اب ایران بیچ میں پڑا ہے پاکستان اور افغانستان کے جو سیز فائر ہیں اس کے اندر، کہ ہم بیچ میں پڑتے ہیں. ترکی اور قطر کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی یہ کوشش کر لیں. ایران بھی ان کو ساتھ ساتھ دھکیل رہا ہے اپنے ملک افغانستان، اور پاکستان بھی ان کو دھکیل رہا ہے افغانستان کو اپنے ملک. اچھا، وہ بتائیں کہ چائنا نے نیو ویزا پالیسی لانچ کی ہے. امریکہ جو امریکن جتنے بھی ہیں
जो आप समझ लें कि जबरदस्त ग्लोबल टैलेंट का नाम इस वीजे को दिया जा रहा है, जो जबरदस्त माइंड के जो लोग होंगे चाइना उनको इस टाइम वीजे देने जा रहा है, और दुनिया में जो ग्रेटर माइंड पीपल हैं जिन्होंने दुनिया में एक अपना मुकाम बनाया है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये वीजे अब उनको दे रहा है। पहले किसी वक्त में अमेरिका देता था, और अमेरिका जब निकालने की बात कर रहे हैं इन लोगों को, तो साथ ही चाइना बीच में आ गया कि हम वीजे देते हैं। और रशिया ने बोला है कि इसराइल अगर सीज फायर कभी भी खत्म करेगा तो हम अब गजा के साथ हैं। ये भी एक रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। इस पर कितनी सच्चाई है, क्या चीज है, उसामा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इस वक्त फलक 9 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, 11 को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। किसी भी उल्टी चाल जो प्लैनेट्स की होती है वो उसमें शदीद करती है अपने असरात को, लेकिन उसके साथ साथ वो जो भी उसकी इम्पैक्ट है वो, मिसाल के तौर पे जुपिटर का उल्टा घूमना ज्ञान का, कर्म का, नॉलेज का, या सही होने का, या राइट वे का, मतलब देखो दो सड़कें हैं, जी सर। उन दोनों सड़कों पे जाती हुई एक ही जगह पे, और किसी में एक सड़क में कुछ फीचर्स हैं, एक सड़क में कुछ फीचर्स हैं। मतलब मान लो एक जीटी रोड है, एक मोटरवे है, जहाँ इस्लामाबाद ही नहीं है। अब वो जो जुपिटर है ना, वो आपको उस दिन अगर कर्म है या फजल है उस रास्ते पे ले जाएगा जिस पे उस दिन ब्लॉकेज नहीं है या उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वट एवर जीटी रोड हो या जो आपकी मोटरवे हो। मरकरी जो है वो आपको फैसला करवाएगा इन बिटवीन कैलकुलेशंस कि जीटी रोड पे जंप पड़े हैं, फ्यूल बचेगा, 100 किलोमीटर का वाया कम होगा, लेकिन जंप खड्डे हैं, उससे कहीं बेहतर है कांस्टेंट स्पीड पे जाओ, मोटरवे से जाओ। मतलब ये जमा तफरीक मरकरी का काम है। अब दोनों ही उल्टे घूम रहे हैं, एक ज्ञान, लक, फजल और उसकी सेंस देने वाला, राइट वे पे ले जाने वाला, और दूसरा दुनियावी हिसाब से कैलकुलेशंस, यही आपकी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस हो या जो भी आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, एनालिटिक्स का, वो भी उल्टा। ऊपर से सैटर्न जो आपको काम दोबारा करवाता है, कहता है तूने सही नहीं किया फलक, दोबारा कर। फलक कहता है अभी मैंने अभी कल तो किया था, फिर दोबारा करो। सैटर्न वो उल्टा किया हुआ काम बार बार कराता है जब तक कि आप फिट नहीं हो जाते। इसी को मकाफात कहते हैं, फिट हो जाओ अपने काम में, ताक हो जाओ, मेहनत करवाता है डिले के साथ। अब इन तीन का उल्टा घूमना जिसका ताल्लुक काम, अकल और फजल से हो, आम बात नहीं है। और ये जो को रिलेटेड पीरियड है जब ये सारे नाजरीन देख रहे होंगे 11 से 27 तक, यानी कि ये तीन प्लैनेट, मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन अभी 29 को खत्म कर देगा, सैटर्न 27 को कर देगा, जुपिटर अभी रहेगा। तो बहरहाल ये टाइम क्रिटिकल है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपके जो इंडिया है वो स्ट्रेटजी बदल देगा अपनी 11 को, और वो अब जो नहीं हमला करने की उसमें होगा, 11 के बाद वो भी कर सकता है हमला। याद मैंने कहा था 11 से पहले नहीं करेगा, 11 के बाद इंडिया भी हमला कर सकेगा, 11 से पहले हमारे चांसेस मौजूद है। बहरहाल एनी हाउ इस तरह का तेजी जो दिखाई जा रही थी, आपको याद है मैंने कहा था कि एक चांस तो है कि इसमें रुकावटें कोई आ सकती हैं, लेकिन ये होगा बड़ी तेजी से, जिस तेजी से हो रहा है उससे जंग की तैयारी लग रही है। और अब आपको ये पता चलेगा कि ये जो अभी हम जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इससे अपकमिंग डेज में ये चीजें काफी डेवलप हो सकती हैं और किसी बहुत बड़े हमले हमें भी प्रवोक किया जा सकता है और हम पे हो भी सकता है। और उसका जो बेस्ट डे है, जो एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ट डे नहीं कहना चाहिए वैसे तो, इन अ सेंस के, क्योंकि बहुत ही अलमनाक दिन हो सकता है वो, बहुत ही बुरा दिन हो सकता है इन अ सेंस ऑफ उसकी जो संगीनी है, वो 20 नवंबर है। 20 क्या है? नवंबर 20 नवंबर 27 अक्टूबर की तरह का क्रिटिकल डे है, और उसमें जो
बेसिकली मार्स का जो एस्पेक्ट है राहु के साथ जो 10वें उस पे को बहुत बड़ी आपकी जो इंडिया पाकिस्तान की टॉप पोजीशंस हैं, सदर, वजीर आजम या हायर रैंक्स या कोई भी टॉप पे जो भी हैं वो भी खतरे में रहेंगे। जंग के मामलात, हमला बहुत बड़ा, काफी कुछ हो सकता है। या किसी पार्टी का सदर सुदर जैसे चेयरमैन होते हैं, या किसी पार्टी का कोई सदर चला जाए, या कुछ इस तरह का नागहानी समथिंग इस तरह की 20 नवंबर को कुछ हो सकता है। सर ये तो आप बता रहे हैं दुनिया के हवाले से, जो इंसान है जैसे हम और आप हैं, इनके अंदर भी ये तब्दीलियां आती हैं जब जुपिटर रिवर्स होता है? हाँ, देखिए जुपिटर रिवर्स होता है तो आप अपनी तस्मियां जैसे कहते हैं एक दफा शुरू करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। लोग नमाजें भूलेंगे, नमाजें बार बार पढ़ेंगे, और मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इसी तरीके से जो किया हुआ रिलीजियस वर्क है वो रिपीट होगा। हाँ, इसका एक फायदा होगा जुपिटर रेट्रो का, जिन लोगों ने भी पिछले दिनों उम्रे किए थे उनको दोबारा उम्रे का मौका मिल जाएगा। अच्छा, सुभान अल्लाह। जुपिटर आप रेट्रोग्रेड हो गए रहा थे? है। जिन लोगों ने अभी अभी जब रिसेंटली जुपिटर की जो पोजीशन थी उस दौरान पे जो उम्रे ज़ियारात या कोई मजहबी जगहों पे किसी ने विजिट किया होगा, ये जुपिटर रेट्रोग्रेड जब तक रहेगा ये दोबारा उसका मौका बना देगा। सिंपल। एक तो ये, दूसरा ये है कि मरकरी आपके वही मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, नोट बार बार गिनेंगे, सौदे बार बार लिखेंगे, अस्टाम करके फाड़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर करेंगे। मतलब डीलिंग्स और उसमें थोड़ी सी जैसे कहते हैं मिस्टेक्स कैलकुलेशन में और चीजों में होंगी। और मोस्टली अब कोई प्रेडिक्ट करेगा, चलो ये भी अपने, क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स भी उसको वो कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। उन्होंने भी तारीख आज 20 की मिल गई है ना, अब चलें अब देखें फिर हर तरफ 20-20 हो जाएगी। तो अब उसमें देखें कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ये भी जैसे कहते हैं कि वो बार बार जैसे कहते हैं ना कि ये भी सही नहीं होंगी। गलत करेगा फिर बोलेगा, फिर गलत करेगा, ये चीजें इस तरह की एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी हो सकती हैं जो अब अच्छा। कैलकुलेट करेंगे, जो अब 9 के बाद कैलकुलेशंस करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने जो 5 को रीडिंग ले ली या कर ली, वो रीडिंग 5 की ठीक थी, लेकिन आज अगर मैं कुछ करूं तो उसमें चांसेस मौजूद होंगे कि ये मैं उसमें मुझे अपने उसको रिविजिट करना पड़े। अच्छा, कोई भी जायचा देखेंगे आप, अगर यहाँ बर्थ चार्ट देखेंगे उसका भी? देखिए वो तो उसी की बात हो रही है ना, रीडिंग जो भी आप रीडिंग करते हैं उसको रिविजिट करना पड़े, इस तरह की कोई सूरत हाल उसमें मौजूद रहती है जब मरकरी रेट्रोग्रेड। मैंने कहा जुपिटर रिवर्स हुआ है, क्या इंडिया मीडिया कभी सही खबर देगा? अब क्या पता रिवर्स होने पे वो सही खबर दे दे। नहीं, वो तो बिल्कुल अब बिल्कुल नहीं देगा। बल्कि मरकरी कैलकुलेशन मीडिया भी तो मरकरी भी तो है ना, वो भी तो उल्टा ही घूम गया ना। तो अब तो समझो मीडिया मजीद तबाहकुन खबरें देगा मसाले के साथ, क्योंकि मरकरी बैठा भी इस टाइम मार्स के साथ है। मरकरी मार्स में कम्युनिकेशन विद एग्रेशन, और इस टाइम इसका मतलब है बड़े अग्रेसिव हो जाएंगे, मुंह से थूके और झाग निकलने के दिन आ गए हैं समझे। हाँ, हो सकता है स्क्रीन पे या कैमरा मैन पे थूके फेंके ये। अच्छा, ऐसे ऊंची ऊंची बोलेंगे? हाँ, मुंह से झागे निकलेंगे अभी। अच्छा सर, ईरान के हवाले से क्या देख रहे हैं कि ये भी न्यूयॉर्क टाइम में खबर आई है कि यार ईरान ये कभी भी जंग में ईरान जा। का नंबर पाकिस्तान के बाद होना है, अब इन दोनों को जरा थोड़ा सा हो लेने दो ना। अब सीधा ये दिन तो अब है ही नहीं, यही 11 शुरू होगी, 27 से पहले पहले 20 इसका हाईएस्ट डे है जिसमें कुछ होगा। सर कोई मुज़ाकरात देखते हैं बीच में, कोई एक सालसी जो मुल्क बैठ के कोई बीच में बात करे, जैसे सीज फायर अफगानिस्तान के साथ ईरान बीच में पड़ा है, तुर्की अगर पड़ा है ऐसा कुछ? सीज फायर जो तुम कह रहे हो, मतलब देखो कि कितने दिन पहले कतर बैठे, फिर तुर्की, अब ईरान आ गया है। जब कह दिया नहीं होना तो नहीं होना, बस खत्म कहानी। अब अगर ऐसे पंचायती और चाहिए तो वो तो अभी पाकिस्तान इंडिया होगी तो ट्रम्प आएगा देखना, और सारा पानी बहा के अजीबोगरीब पता नहीं किस एंगल में बह जाएगा पाकिस्तान को अचानक। अब जब वो आया तो लगेगा कि पाकिस्तान ही वो इंडिया का साथ देगा। अच्छा, हम्म। इनकी ये खबरें भी हैं। अच्छा सर, बाकी और दुनिया के हवाले से कुछ देखते हैं? आपने कभी करंट कुछ देखा है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने से?
नहीं कुछ भी नहीं देखा मैंने, आज पिंक शर्ट देखी है, शॉकिंग पिंक, जबरदस्त शर्ट लग रही है। ये पिंक शर्ट? शॉकिंग पिंक ही कहेंगे इसको, क्या नहीं, ये रेड कहेंगे, है। ये सब लेडीज ही सही बता सकती हैं। नहीं सर, ये रेड है। अच्छा ये कैमरे में रेड बदल गए? नहीं नहीं, ये रेड है, मार्स का कलर है। अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह। लेकिन ये मार्स। बताएंगे हमें, वो नीचे कमेंट करके बता दें कि ये भी कैसी लग रही, कौन सा कलर लग रहा है। मुझे तो नहीं, मुझे तो पिंक, शॉकिंग पिंक लग रहा नहीं है, नहीं, या रेड है। पता नहीं और कोई औरतों की टर्म हो तो पता नहीं। चलें जी, बादल, दुनिया का ये है कि एक तो नेटो और आपका रशिया जो है वो बहुत करीब करीब होता जाएगा इस टाइम में, और नवंबर उसकी भी कुछ ही बहुत बड़े इवेंट की वो साउंड आ रही है, नवंबर नवंबर, क्योंकि आगे हो सकता है फिर इसमें वो चीजें अनफोल्ड ना हो उस तरीके से। और बाकी ये है कि ट्रम्प जो है वो अटैक की तरफ जो कोई तो कोई कहानी बन सकती है उनकी भी। और जो रशिया ने कहा है ना, वो तो पहले भी कह रहा था गजा एक्सपोर्ट में या उसमें, तो वो मैं नहीं समझता कि अभी कोई प्रैक्टिकली कुछ करने के काबिल है, क्योंकि वो उधर से वो उस जंग को लड़ रहा है यूरोप में या कह ले नेटो के साथ। तो अभी वो इतना इतना नहीं है कि यहाँ भी आके पंगा ले सके। यहाँ उसको सपोर्ट करनी है, यमन की कर दे, हिजबुल्लाह की कर दे, लबनान की कर दे, ईरान की कर दे, इनके जरिए करेगा जो भी करना होगा। हम्म। अच्छा सर, आपके क्लाइंट है, उनका कमेंट एक आया, उन्होंने बोला था, लेकिन उनके साथ विचारों के साथ हादसा तो हो गया, लेकिन वो कहते हैं आपकी प्रिडिक्शन थी ये हैं सैयद आदिल साहब है, कह रहे सलूट है सर आपको। आपने मेरे बारे में कहा था कि आप मोटरसाइकिल चलाते ख्याल रखें, आपको खतरा है, वही हुआ सर। मेरा बहुत बड़ा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, कोटली आजाद कश्मीर से मीरपुर जा रहा था, लेट हो रहा था, इसलिए कोशिश कर रहा था जल्दी वापस आऊं, और बहुत बुरी जख्मी हुआ हूं। आपकी कही हुई बात एक एक सच हुई है। वो जख्मी होकर भी कमेंट करने आए हैं इधर। बहरहाल अल्लाह अल्लाह ताला मियां इनको उनको सेहत सेहत दे। तंदुरुस्ती दे, बहुत ज्यादा उसकी, जैसे कहते हैं कि उनका खैर अंदाज ही बहुत प्यारा है कि वो इस चोट पे भी कमेंट करते हैं आके। प्रिडिक्शन लेकिन अल्लाह पूरी होगी। ताला, हाँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। अच्छा जी, यही कह रहे हैं कि सर आप अस्सलाम वालेकुम, दोनों भाइयों को, खास करके उसामा साहब को बहुत प्यार और शुक्रिया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, शुरू से भाइयों का मुहताज हूँ। कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, ठीक रहेगा? लाजमी मेरा कमेंट शामिल करें फलक भाई। ये कौन है जो ये जिनका वही है। एक्सीडेंट? जी जी, अच्छा, आदिल साहब। हाँ अभी फिलहाल तो देखिए, आप या तो कोई बाहर का ऑनलाइन काम कर सकते हैं, या ऑनलाइन बाहर की कोई आईटी से रिलेटेड, या अमेजोन या दराज, या कोई फॉरेन फॉरेन रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये कमेंट है, नाहिदा कह रही हैं, एवर सिंस उसामा साहब mentioned the benefits and rewards of praying as soon as prayer time commence, I have been acting upon his advice. I would pray 5 times a day, but never at the beginning. Rather, I would pray somewhere in between the given time, or sadly pray late, especially Zohar prayer. But since this advice on prayer and the reasoning behind it, benefit are attached to Salat for up to 45 minutes for the 15 minutes for Maghrib, after which the benefit leaving behind just reward, and the later even at reduced level. This information transformed my life. Now I pray on time with in 5 minutes of prayer start time, and I can. बड़ा लंबा उनका मैसेज है, और वो ब्लेसिंग और बहुत सारी जजाकल्ला खैर। उसामा साहब सलामत रहें। और सोल्यूशन है आपकी। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किया सर कि हम आपका प्रोग्राम प्रेडिक्शन पे नहीं देखते, आपकी इस्लामी जो आप लोगों को चीजें बताते हैं, गाइड करते हैं, उस पे देखते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। सबसे पहले तो दीन के लिए, जैसे कहते हैं, अल्लाह सीना खोले, क्योंकि वो कहते हैं कि जब किसी का अल्लाह ताला फरमाते हैं इरादा उसकी खैर का, तो उसके लिए दीन सीखने का मौका या दीन के लिए सीना खोल देते हैं। तो एक तो आमीन। अच्छी बात है कि आप सबके लिए अल्लाह ताला ने खैर रखी है, कि आप खैर को चुन रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वरना आज कौन ध्यान देता है, उसको क्या लेना देना नमाज कब पढ़े कब ना पढ़े। दूसरी बात यह है कि जो इतना सारा इंग्लिश में लिखा है वो ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे व्यूअर भी होंगे, वो तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे जो उन्होंने कहा है। अब कल आज की उसमें मैं नाहिद साहिबा से करूंगा गुजारिश कि इसी को कॉपी पेस्ट करें,
चैट जीपीटी पे डालें या कहीं भी कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू और हम्म, दोबारा कमेंट कर दें, और आप कल ठीक है, दोबारा पढ़िएगा उर्दू में, ताकि थोड़ा ठीक सा है, आम पब्लिक को इसकी जो जो उन्होंने कहा है वो मैसेज सब तक पहुंचे बेसिकली, ठीक कि है वो सर, इंस्पिरेशन होती है बेसिक। मैं तो सबको कहता होता हूँ कि आप लोगों का यही काम है, जो मैं कर रहा हूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, फलक अपना काम कर रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन करके आप लोगों के क्वेश्चन करके या अपना एक इंटेलेक्ट से क्वेश्चन करके आप लोग अमल करते हैं, मैं अपना रास्ता बताता हूँ। अब रिजल्ट जब हम 3 लोगों का आपस में मैच करता है या मिलता है, काम पूरा होता है साइकिल, तो उसका फ्रूट ये बनता है कि अब आप लोग उसका फीडबैक दें ताकि और लोग उससे इम्प्रेस हों और उसको ट्राई करें। क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग तो मेरे कहे पे चलेंगे, कुछ फलक की पूछने पे चलेंगे, कुछ आप लोगों के बताने पे चलने के वेट में बैठे हैं, वो हम दोनों पे यकीन नहीं करते, वो आप लोग कमेंट करेंगे तो वो आपके आसरे पे बैठे हैं। तो जी सर, मैं समझता हूँ कि जो राह हिदायत है वो कहीं आप उसमें कहीं अपनी हिस्सा मिलाने से महरूम ना रह जाए, इसलिए सब के सब से मेरी गुजारिश है, उन्होंने बेशक दर्द खत्म करना सीख लिया है या जबारों या कहारों से, अव्वल वक्त की नमाज से जिंदगियों के डिले खत्म कर लिए, या जैसे मैंने अर्ज की थी कि सबसे बड़ा वजीफा गुनाहों से रुक जाना है, सबसे बड़ा वजीफा है ये कि आप गुनाहों से रुक जाएं, जो चाहिए ले लें। हम्म, अच्छा अगर सर, किसी ने ये प्रैक्टिस की है या जो भी बताई हुई बातें किसी ने अपनी जिंदगी में अमलन शामिल की है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट लगा के जरा, आजकल तो बड़ी आसानी है, वो ख्याल टाइप राइटर पे माइक ऑप्शन होती है, आप बोलें वो कमेंट बनता जाता है, वो लिखने बस सब जी कोशिश जी, करें। और मेरी गुजारिश है कि जितने मेरे इस टाइम रेगुलर फैंस या व्यूवर्स हैं, वो अपने ईमेल्स बना के इस पे अपने लॉगिन करें प्रॉपरली, ताकि वो कमेंट कर सकें और इस चीज को आगे बढ़ा सकें, जी इसको सर, ताली को दोनों हाथों से बजाने तक लाएं। और बच्चों से कहें, किसी से भी कहें, अकाउंट बनवाएं इस पे, अपने जीमेल से यूट्यूब पे साइन इन करें और उसके बाद इस पे क्लिक कर, मतलब जो कमेंट करें, जैसे अब मैं कमेंट कह रहा हूँ, अब कई लोग होंगे जो कर ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा लॉगिन ही नहीं बना हुआ। तो एक दफा बना लें, क्योंकि गाहे बगाहे आप लोगों की भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, फिर ये चीज ज्यादा कारआमद होगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, लाला साहिबा ये कह रही हैं हिजरत के बारे में और वजाहत लें उसामा ब्रदर से। देखिए हिजरत को अरबी में हिजरत रीलोकेशन कह लें, घर की तब्दीली, मकान की तब्दीली, जगह की तब्दीली। अब आपने हिजरत, क्योंकि वो मदीना की एक 400 किलोमीटर कह लें या जो एक ट्रैवल था, तो आप लोगों के ज़हन में बस वही उस लफ्ज की हिजरत वही बन गया कि 200-250 किसी दूसरे शहर ही जाओगे तो हिजरत होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बेसिकली समझाया ये गया है कि रिलोकेट कर लो अगर किसी जगह आपको बड़े अरसे से रिस्क की तंगी हो या उसके मसाइल का शिकार हो। अब हमने क्योंकि हिकमत में अब सारा दिन एक्सपीरियंस से लोगों की जिंदगियों को देख रहे हैं, हजारों एक्सपीरियंस हुए, उसके बाद ये समझ आई कि जो बीमार है उसका रिस्क तो खराब ही है, और वो है तो शैतानी है इन्फ्लुएंस में। कोई जादू साया कह लेगा, कोई साया है तो वो भी जादू के पीछे डाल देते हैं जिन्नात भी, कि लगता है कि फलां ने कर दिया, फलां ने कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं हम एक्सपोज ना हो। इसी तरह वो बीमारियों के पीछे भी छुपते हैं, जी ये तो जी, जी इसको फलां है, ये तो इसको कैंसर हो गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। हम्म, तो इसी तरीके से रीलोकेट या घर की तब्दीली एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप, मैंने जैसे अर्ज की कि सालों से अगर आपके मसाइल हल नहीं हो रहे तो घर चेंज कर दें ठीक है, और फिर दुआए का आपका अमल करें। पहले तो ठीक है, दुआए का आपका अमल करके देखें कि आप लोगों को अल्लाह ताला जो फजल करे और उस सब से निकाल दे। लेकिन कुछ लोग इतने क्रॉनिक हो जाते हैं, अब खाली दुआ क्या करेगी, आप सारा दिन मतलब अल्लाह ताला के हुक्मों को पामाल करें, छोटे छोटे गुनाहों से बचे मना, और थोड़ी थोड़ी हदूद जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है आपके लिए, की तो आपके लिए है ना, तो उनसे आप बचे ना, उधर से दुआ हम्म, करें। मतलब मैं जैसे अब अपना वॉशरूम में जाना, दुआ ना पढ़ूं, सर पे कवर ना करूं, बलाओं में जाऊं, और इधर से मैं दुआ करूं या अल्लाह मुझे आउज़ बिवजिल्ला, मतलब हम दुआ करें कि भाई अल्लाह तेरी पनाह मांग दो शैतान से, और वैसे मैं जो है अमलन शैतान से बचने का कोई जरिया अडॉप्ट ना करूं, तो इसका मतलब फिर वो अमल या वजीफा कामयाब कैसे होना है बताओ। हम्म।
تو سر یہ جو واش روم میں گانا گا رہے ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں واش روم سنگر ہوں گانا گنگنانا یا کہہ دینا باہر سے موٹر چلا دو اس طرح کی اکثر ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے؟ صرف غلط ہی نہیں ہے، مطلب یہ سمجھے وہ نہیں گنگنا رہا، اس کے اندر جو بھوت ہے وہ گنگنا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں واش روم از ناٹ گڈ پلیس، یہ ان کی جگہ ہے، اور اس میں رکنا جو لوگ زیادہ رکتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں جن پہ اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے. اچھا اکثر وہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ واش روم کرتے ہوئے، میں نے یہ بھی مطلب کہ کافی لوگ بتاتے ہیں میں کہ جی وہ واش اتنا روم ٹائم نہیں دیکھا، یہی کہہ رہا نہیں میں کہ نے یہ اتنا بھی ٹائم دیکھا۔ نہیں یہ نہیں دیکھا یہ مطلب کہ وہ واش روم میں کہتے ہیں نا کہ بہت ٹائم لگا رہے جی موبائل پہ وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ ساتھ ساتھ، تو یہ چیز بھی ہمارے عموماً اب عام ہوئی جا رہی ہے. تو واش روم ہی انہی کی جگہ ہے نا، راہو ہی ہے یہ بھی آپ کا، واش روم کے اندر یہ شیطانی قوتیں جنات یہ سب راہو ہے، یہ آپ کا موبائل راہو ہے، یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی سب اسی میں ہی آتا ہے، تو وہ تو اس کی فیوریٹ پلیس ہے۔ ٹھیک ہے. اچھا سر ہینا بہت زیادہ دے رہی ہیں سوما بھائی، سوما سر آلویز ایکوریٹ پریڈکشن. اچھا جی سمینہ ہے، بہت شکریہ فلک بھائی سوما سر سے دعا کروانے کے لیے، اللہ برکت دے آمین، ہمیشہ کی طرح زبردست ویڈیو. عبداللہ کہہ رہے ہیں سوما صاحب کمال کی ویڈیو ہوتی ہے آپ کی، میں انتظار کرتا ہوں آفس جانے سے پہلے ناشتے میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں صبح، کائنڈلی صبح ویڈیو لگایا کرے. اچھا جی ماشاءاللہ سر اسامہ صاحب خضر صاحب ہیں، ویڈیو میں دیکھتا ہوں ہر روز کچھ نیو سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا ایک صاحب نے لکھا ہے آج آپ کو میں نے یاد کروانا ہے کہ آپ نے دوسرا فیز بھی بتانا تھا، ایک آپ نے بتا دیا، بھولا جائیے گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جو کل ایک آپ نے سلسلہ سٹارٹ کیا تھا نا تربیت کا. ہاں جی، اگلا لیول یہ ہے اسلام کا کہ آپ جو کل تو میں نے صرف صفائی پہ بات کی تھی، اب صرف ایک ہی بات ہے آج کا اینگل، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنا، بس یہ ہے اسلام، کہ آپ ہر وقت اس بات کا اعادہ کریں گے کہ یا اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. مطلب جیسے آپ ایک قربت یا کلوزنس کا یہ احساس دیتے ہیں، یہ آپ ذہن میں عملاً بھی اور ذہن میں بھی، جیسے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے بچے نے گھر آنا ہے، ایک احساس ہے نا، رشتہ ہے کہ یہ گیا یہ آئے گا، مطلب کائنڈ آف ایک ریلیشن شپ. اسی طریقے سے آپ کے کوئی بھی چیز جب جہاں سے جاتی ہے وہیں کو آنے کی ایک جو آس ہے، ایک سائیکل کو پورا کرتی ہے بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ آپ لوگوں کو انسانوں کو بھیجا ہے اپنے جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو شو کرنے کے لیے، کہ میں نظر تو نہیں آؤں گا، میں غیب ہوں، غیب چھپی ہوئی ساری چیزوں پہ کتنا تمہیں مان لاؤ گے. جب شیطان تمہیں بہکائے گا تو وہ جو ایک محبت اور کنیکٹیوٹی کا جو وہ احساس ہے بیسیکلی، وہ زندہ کرنے کا یہ مقصد ہے اسلام، یا اس کی وہ کنیکٹیوٹی لینا. اور ان سارے خواص کو جو اللہ تعالیٰ نے، آپ تو 99 صفات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، اس کی سینس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں شیطان کا بندہ جو ہوگا وہ شیطانی خواص کا حامل ہوگا، اور وہ جتنا بڑا ہوگا شیطان تو نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ بھی شیطان ہی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. ہاں اسی طریقے سے جو رحمان کا بندہ ہے اس میں رحمانی خواص نظر آنے لگیں گے، اور پھر آپ سمجھیں کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی کہ وہ سسٹم کے اندر محبت اور امن اور لوگوں کی فلاح اور ہیومن کیئر کی وہ سارے اقدامات میں ایک رحمانی اسپرٹ سے شامل ہو جاتا ہے، کہ لوگ اس کو دیکھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کو دیکھ سبحان کے خدا یاد آتا ہے، اس سے دیکھ کے خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. جس طرح وہ شیطانی آدمی کو دیکھ کے شیطان سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور شیطان سے یہ دو ہی باتیں ہیں، انہی کے ان بٹوین اسلام ہے کہیں. اور اس میں یوں سمجھیں کہ مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھیں اور واپسی کا تصور رکھیں. اور یہ انا للہ کی جو مرنے کے ٹائم آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ روز کرنے کی بلکہ ڈوبتے ہوئے دل کی ایک اچھی تسبیح ہے. جب کبھی آپ بڑے ڈپریس ہوں اور بالکل دنیا سے آپ ہار جائیں، بستر میں گرے پڑے ہوں، تو پھر یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور طاقت دل پہ یوں جیسے کہتے ہیں نا تھپکی دیتے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک دم قوت مل جائے گی. سر یہ کتنی دفعہ پڑھیں دن میں؟
बस ये तो जितनी बार ज़हन में अल्लाह ताला आए तो बस उतना मोहब्बत से आई लव यू है बेसिकली ये इन शॉर्ट यूं अच्छा कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये मोहब्बत का इजहार है। ठीक है सर, मौजम साहब कह रहे हैं सलाम पेश करें सामा साहब को, आप दोनों ग्रेट पीपल हैं, ग्रेट वर्क। सामा साहब बांग्लादेश से हूं मैं, गुलनाज, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदाबाद उन्होंने लिखा है। अच्छा जी सर, मैंने हफ्ते को अपना गोल्ड सेल किया और आज 10,000 रेट बढ़ गया। सर आने वाले दिनों में गोल्ड नीचे जाएगा या नहीं, प्लीज जवाब जरूर दें। मलिक, मना किया था सामा साहब ने कि गोल्ड नहीं बेचना, गोल्ड रखना है। और एक साहब थे, एक कमेंट था कि मैं घर अपना ना सेल मतलब करने लगा था। सामा साहब का कहीं ब्लॉग मैंने देखा, 2-4 देखे, मैंने छोड़ दिया। मैं कहा अगले साल ही इसको देखेंगे और मैं ये बेच के अगर बेचूंगा तो गोल्ड ले लूंगा। ये उनका कमेंट एक आया हुआ था पुरानी वीडियो पे हमारी। अच्छा सर, एक कमेंट था, वो कह रही मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, अनमैरिड हूँ, अब मुझे मिल नहीं रहा वो कमेंट। सामा साहब से पूछें कि हाँ ये आ गया, कैसी बात है, मैंने भी ऐसे स्क्रॉल किया आ गया। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, प्लीज सर से, ये है शेरी खान, पूछ के बता दें यूटीरस रसोलियां डॉक्टर ने सर्जरी का बोला है, अनमैरिड हूँ इसलिए रिमूव नहीं कर सकती, दुआए का आपका अमल तो कर रही हूँ, 7 दिन बाकी हैं, 41 दिन हो जाएंगे, प्लीज भाई कोई खास वजीफा सर से पूछ के बताएं। उम्रे पे भी जाने का इरादा है, लेकिन अगर घड़ी के मिरर्स भी बंद हो तो अच्छा गाड़ी के मिरर्स भी बंद हो तो दिल तंग होने लगता है, सफर से भी डर लगता है, प्लीज भाई अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। अच्छा देखिए आप ये अपना रसोलियों का लिख के और रेट का लिख के व्हाट्सएप करें इसी नंबर पे और उस उनको कहें कि आपको एक डिटेल्ड इसका दे दें जो रेमडीज हैं वजीफे के साथ उनको फुल फॉलो करें, ऑपरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही केस है जो यूके में सॉल्व हुआ था, जो मैंने तुम्हें अच्छा दिखाया नहीं थी एक दफा तस्वीर उधर से आई थी हमें स्कैन्स की जी कि जी जी जी। उन्होंने अब कैंसर कॉल किया और कहा जी इसके अंदर ये तो रसोली कह रहे हैं, उन्होंने तो कैंसर वैंसर कहा हुआ था और अंदर वो शक्लें भी बनी नजर आ रही थी बड़ी, और फिर अगला स्कैन नील था 7 दिन बाद। तो वो हम्म, फार्मूला मैं इनको दे देता हूँ, वो ये अब जाहिर बात है इधर मुनासिब नहीं है खुल के उसकी बात करना, तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके तो मैं असिस्टेंट को बता दूंगा और वो फिर ये कर लें सर आपसे। कमेंट ये भी आते हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते, आपने उनका भी इलाज किया है, जो पैदाइशी तौर हाँ जी, पे नहीं बोल पाते। ऑटिस्टिक बच्चों के जी, ये देखिए शैतान समझ जाओ, बस 2 बातें समझ जाओ, रहमान समझ जाओ, शैतान समझ जाओ, जिंदगी समझ आ जाएगी। क्या बात है। अच्छा सर, इमरान हुसैन है, ये रोज कमेंट करते हैं, फलक भाई अस्सलाम वालेकुम, अमृतसर के हालात के बारे में पूछ लो सामा भाई से, ये रोज कमेंट आता है। इंडिया पाकिस्तान के कोई अब हालात नहीं, ये 27/11 से अब जो 27 तक उधम मचेगा इसके अंदर ही पता चलेगा कि हालात किधर जाते हैं, खराब ही होने अब आए दिन जो सूरत हाल बन रही है। अच्छा जी, मरियम शहजादी कह रही हूँ सामा भाई, जब मैं 2 नफल बीबी सईदा फातिमा पढ़ती हूँ तो दुआ करती हूँ अल्लाह आपको अजर दे। जी बहुत शुक्रिया। देखें जो भी ये 2 नफल पढ़ेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा, और उसकी दुआएं जिनकी नहीं सुनी जा रही सालों से, और जिनकी सालों से उनको लगता है कि वो इस्लाम से कोई फायदा नहीं ले सके, या नमाजें पढ़ी जा रहे हैं, सजदे किए जा रहे हैं, जिंदगियां नहीं बदल रही, तो वो जब तक ये 2 नफल बीबी पाक को हदिया नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कहानी की चाबी ये है बेसिकली। अजर रिसालत में इनकी मवद्दत मांगी गई है। सूरत शुरा की आयत नंबर 23 में जो कुर्बा वर्ड है वो कराबतदारों का नहीं है, वो वाहिद मोनस का सीगा है, जिसको अकल अल्लाह ने देनी हुई है, मेरा जुमला ही काफी है। तो ठीक है। अव्वल वक्त की नमाज, खुशबू का इस्तेमाल और 2 नफल बीबी को हदिया करना, या जब भी जेब से निकालना उन्हीं के लिए साले सवाब करना, आपके फिनेंशियल उसको प्रॉस्पेरिटी को तो यकीनी बनाएगा, आपकी वैसी ओवरऑल इस्लामी जितनी भी अमाल है उनकी कबूलियत का बायस बनेगा। ठीक है, ये इलियान साहब हैं, सर उसामा साहब, अली अली खान साहब, मैं आपकी प्रेडिक्शन सुनने नहीं आता, मैं आपसे इस्लामिक नॉलेज लर्न करने आता हूँ रोज। चलें जी आपकी मर्जी, बाकी आप कान बंद रखा करें, शुरू के 15 मिनट और आखिरी 20 मिनट में कान खोल लिया करें, बस हम यही कह सकते हैं। असद जावेद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, फलक शेख, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। असद जावेद साहब, सर इस तरह के बहुत कमेंट हैं। एक इंडिया से ये मिर्ची वाला है, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई सामा, शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, बहुत दीनी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लीज इस सिलसिले को कभी रोकिएगा नहीं, आपको नहीं अंदाजा हमारे मामला कितने सीधे हो रहे हैं और हमारे काम कितने सीधे हो रहे हैं, ये कमेंट देखें। और मैंने कल नहीं कहा था इंशाल्लाह, मैंने नमाज तो का, कल ही कहा था आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को भरपूर इसमें अल्लाह ताला के फजल से कोई जरूरत नहीं रहेगी, जिंदगी इंशाल्लाह। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।
और सर नमाज के काफी कमेंट्स आए, जो मैंने नहीं कहा था कि आप ख्वाब में आते हैं, अक्सर कहते हैं उठ बे नमाज पढ़, लेट हो रही है। ये मैंने तो शुरू की है नमाजें, मैं पहले छोड़ देता था, लेकिन अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि 5 वक्त की तरफ आऊँ। लेकिन आप यकीन करें कि इतने कमेंट्स नीचे ये वाले आए हैं कि आप उनकी ख्वाब में भी आते हैं, आपके कहे हुए वर्ड्स उनके ज़हन में आते हैं कि उठो भाई नमाज पढ़ो, नमाज की वो 5 वक्त नमाज पढ़ो। कहते हैं हर जैसी अजान होती है वो आपकी बात याद आती है कि इसको इंपॉर्टेंट देने, अपने काम कहते हैं हम छोड़ के नमाज की तरफ लग गए हैं। वो कहते हैं मैंने कभी जो एक कमेंट था, वो कहता मैंने कभी जुम्मा नहीं पढ़ा, अब मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ आपके ब्लॉग की वजह से। ये भी कमेंट। चलें जी, माशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में, मैंने जैसे शुरू में इस प्रोग्राम के आगाज में कहा कि सबसे बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला आपका सीना अपनी मार्फत के लिए खोल दे। और आमीन। दूसरी बात ये होती है कि फिर उसके बाद एक ही मांगा करें कि या अल्लाह अब हमें इस्तकामत भी देना, अब जमे रहे हाँ, हैं। बस जैसे हाथ डल गया है ना, तो बस ये पक्का रहे, बस इस पे पक्का फोकस रखें। इंशाल्लाह। सर और आपका जो लोग जी जी नमाज अव्वल वक्त की करिश्मे को पा गए ना, जिसने भाग के नमाज पढ़ना शुरू कर दी, फलक ठीक आपको 2 महीने 3 महीने में कमेंट करके बताएगा कि जिंदगी के सारे डिले खत्म हो गए। डिले से शादी डिले थी, कारोबार डिले था, वीजा डिले था, फलाना डिले था, ये डिले था, वो डिले था। जो भी देरी का मामला है वो नमाज की देरी से है। ये फार्मूला है। अच्छा आप चाहते हैं अच्छा। डिले खत्म हो जाए, आप भाग भाग के पढ़ें। तो सर और ये जुमे को मौलवी, जो भाग रहे होते ये हैं। जोर की मौलवी के पीछे ना पड़े। मौलवी बहुत लेट है। जोर 12 बजे, गूगल से पूछें जोर के प्रेयर टाइम 12:15 पे है, 12:20-25 आपके इलाके के हिसाब से, जहां जो भी है दुनिया में, आप जहां भी हैं, तो उसको गूगल के मुताबिक जाके वजू करके मुसल्ले पे खड़े हो जाए और खुद ठीक। वैसे तकबीर कह लें। ये भी हुक्म है कि आप तकबीर कहें, उल्टा अकेले भी पढ़ रहे हो तो तकबीर कहें, बुलाएं नमाज के लिए, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन एक और चीज का ख्याल रखना, ये आप जब नमाजी हो जाते हैं तो आप इर्द गिर्द वालों को भी कहने लगते हैं आओ भाई नमाज के लिए। नहीं, वो नहीं कहना। जी अमल से इतने खूबसूरत हो जाओ कि वो उनका भी दिल करे कि चलो यार फलक मैं चलता हूँ। कहना नहीं है। मोस्टली अब इस्लाम ये बन गया कि आपने नमाजें शुरू की ना 4 दिन, आपको बड़ा एहसास हुआ इसका, मोहब्बत जागी, फजल खुदा है, ठीक है, मजा आ रहा है, तो आप फिर कहने लगते हैं दूसरों की मोहब्बत में कि यार ये भी मेरा भाई है या दोस्त है, इसको भी लगाऊं इस काम पे, मैं तो लग ही गया। लेकिन आपको पता है कि अगर उसने ना कर दी तो आपने उसकी कितनी बड़ी बर्बादी कर देंगे उसकी। ये नहीं आपको एहसास। उसने अगर ना कर दी ना, तो आपने हुज्जत तमाम की थी। अब उसके लिए कोई ना कोई खैर नहीं बचेगी। तो इसलिए कभी किसी को नहीं कहना कि आ जाओ भी नमाज के लिए। नो वे। आप पढ़ें, आपका करैक्टर ऐसा हो कि आपकी सोबत के असर में लोग नमाज पढ़ने लगे। ये है सुभान इस्लाम। क्या है कि उसकी टांग ना तोड़वाएं क्योंकि अगर उससे ना उठा गया शैतान के गलबे में, और मोस्टली ये बंदों का कोई कसूर इस अंदाज से भी नहीं होता, जो नमाज नहीं पढ़ पाते मोस्टली पोजेस्ड बॉडी है, जादू साए के असरात हैं, और खसूसन हॉन्टेड लोग हैं, वो नमाज नहीं पढ़ पाते। ठीक है उसलिए सर फिर ये आपका। होता है कि आप जैतून का मसाज करें, लौंग मुंह में रखें, नमक से नहाएं, खुशबुएं लगाएं, फिर जाके कहीं आपको नमाज की तौफीक होगी। इंशाल्लाह। सर आपके बहुत फैंस हैं, दुआ का भी कहते हैं, लेकिन मैं सबके कमेंट्स नहीं ले सकता, मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या करूं। और लोग फिर भी इतराज करते हैं, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। तो फैंस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके सामने उनका नाम लिया जाए। तो इस पर भी मतलब आप सब एक दुआ दे दिया करें सबको जो जो देख रहे हैं, और लव यू उसामा साहब कमेंट में जरूर लिखा करें, ताकि हमें ये पता लगे कि इस 40 मिनट तक हमें कौन देख रहा है। वही फैन सच्चा होगा जो एंड पे अब लव यू नीचे लिखेगा। ये एक चेक होता है। ये भी बता दिया करो भी किसने कहना है कि किसने नहीं कहना। तुम तो सारों के लिख देते हो, नहीं नहीं, गलत सारे थोड़ी कहें, है। कोई नहीं, सारे स्टूडेंट हैं आपके, सब करें, बल्कि अच्छा व्हाट्सएप पे भी मैसेज करें, इधर कमेंट में भी करें। तो नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि डेली टाइम से हमारा प्रोग्राम आए, ताकि आपको रूहानी चीजें और प्रिडिक्शन जो भी चीजें हैं सीखने का मौका मिले। जी असल सर। प्रेडिक्शन ये है कि हो सकता है अब रातों को भी प्रोग्राम आ जाए, आगे दिन जैसे बनते जा रहे हैं दोबारा। हाँ, रातों में भी कोई अपडेट दें, बल्कि लोग तो कहते हैं भाई ये 2-2 3-3 करें, सामा साहब से कहें हाँ, इस्लामिक बस अलग और कर कोई दें। काम ही नहीं है, इसी में लग जाए बस है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।